أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، قربانی کے مسائل آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اور قربانی کے ان مسائل میں آج جو مسئلہ آپ کے سامنے پیش ہوگا انشاءاللہ وہ مسئلہ ہے کہ کیا جانور کا دانتا ہونا ضروری ہے؟ قربانی کا جو جانور ہے کیا اس کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ وہ جانور دانتا ہو؟ دانت کا اعتبار کریں گے یا اس کی عمر کا اعتبار کریں گے؟ یہ جو مسئلہ ہے آج پہلے اس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کے راوی ہیں جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن۔ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم ذبح مت کرو، یعنی قربانی کے وقت، قربانی کے جانور کی بات ہے یہ، کہ قربانی میں تم ذبح مت کرو مگر مسنہ جانور کو، مسنہ کو ہی ذبح کرو۔ یہ معنی ہے اس کا۔ مسنہ کسے کہتے ہیں عربک لینگویج میں، عربی زبان میں؟ انشاءاللہ آج کے درس میں خاص طریقے سے اسی کی شرح کی جائے گی، اسی کو ایکسپلین کریں گے۔ الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، مگر یہ کہ اگر تمہیں پریشانی ہو اور دانتا جانور نہیں مل رہا ہے تو اس وقت 1 سال کے دمبے کو قربانی کر سکتے ہو۔ جزع من الزعن کہا گیا ہے اس روایت کے اندر۔ زعنن کہتے ہیں شیپ جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، دمبا ہم کہہ لیتے ہیں اردو میں، بھیڑ بھی کہہ لیتے ہیں، یہ سب کی سب عربی میں ضعن کہلاتا ہے۔ تو ضعن یہ جو کہ اون والا جانور ہوتا ہے، بال والا نہیں ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جو بکرا ہوتا ہے جسے ہم گوٹ کہتے ہیں، گوٹ یہ جو ہے بال والا جانور کہلاتا ہے۔ تو یہ اس کا مسئلہ الگ ہے، اور یہ دمبا جسے کہتے ہیں، بھیڑ کہتے ہیں، شیپ کہہ لیتے ہیں آپ، جس میں اون ہوتا ہے، اس جانور کے بارے میں بات کہی کہ فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِنَ الضَّأْنِ، کہ اگر تمہیں پریشانی ہے اور جو ہے مشکل ہے، اور مشکل ہے اس دانتا جانور نہیں مل رہا ہے، اور تو ایسے موقع پر ہو سکتا ہے کہ جو بھیڑ ہو تو 1 سال کا بھیڑ ذبح کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے لا تذبحوا الا مسنۃ، اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسنہ جانور ہی کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور یہی اصل ہے شریعت، کیونکہ اس میں جو انداز ہے بیان کرنے کا، انداز کیا ہے عربی میں؟ لا تذبحوا الا مسنہ۔ اس انداز کو عربی میں، اس اسلوب کو عربی میں اسلوب حصر کہا جاتا ہے، اسلوب قصر کہا جاتا ہے عربی بلاغت میں۔
इसका मतलब ये हुआ, हस्र या कस्र का मतलब ये हुआ कि हम अगर दूसरी लैंग्वेज में इसे कहना चाहें तो यूं कहेंगे कि तुम सिर्फ दांते जानवर ही की कुर्बानी करो, तुम सिर्फ दांते जानवर की कुर्बानी करो, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, बल्कि मैं ये कहूँ कि सिर्फ मुसिन्ना जानवर की कुर्बानी करो। तो ये असल है हमारी शरीयत में, ये कायदा है हमारी शरीयत में, ये ज़ाबिता है कि जानवर जब खरीद रहे हैं कुर्बानी के लिए तो दांता जानवर खरीदें, मुसिन्ना जानवर खरीदें, उसी की कुर्बानी करें। ये है ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना। अभी जो आगे बयान है बाज़ रिवायतों में, इसमें तो खैर ये है कि अगर मुश्किल है, मतलब ये है कि परेशानी है, नहीं मिल रहा इस तरह का जानवर जो है, तो और जो है हमारे पास जान है जो 1 साल का है, 1 साल का दुम्बा है, तो उसको कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन बाज़ रिवायतों से ये पता चलता है कि दुम्बे के लिए ये कोई कैद या शर्त नहीं है कि अगर जानवर दूसरा नहीं मिल रहा है तभी 1 साल के दुम्बे की कुर्बानी करने की गुंजाइश है, जिसके लिए अरबी में यहाँ जज़ातुम मिन अज़्ज़ान कहा गया है। तो ये जो है बात ज़हन में रखिएगा इसके बारे में कि ये बाज़ रिवायतों में ऐसे भी आया हुआ है, यानी बगैर किसी कैद के, बगैर किसी कंडीशन के, कि आम हालात में भी अगर जानवर ऐसा है जो दुम्बा है और 1 साल का हो चुका है तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ है, जिसके लिए जज़ातुन का लफ्ज आया हुआ है। लेकिन जज़ातुन का लफ्ज भी आम तरीके से लोगों ने 1 साल का माना किया है। 1 साल के दुम्बे को जज़ातुन मिन अज़्ज़ान कहते हैं, जज़ा कहते हैं। वरना बाज़ फ़िक़ही किताबों में, जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि बाज़ फ़िक़ही किताबों में जज़ा को 6 महीने का भी जो है लिखा है, 6 महीने का। लेकिन ये बहुत ही जो है शाज़ किस्म का कौल है। ये आम तरीके से लोगों ने जो लिखा है जज़ातुन, ये 1 साल का दुम्बा लिखा है, जज़ातुन मिन अज़्ज़ान, 1 साल का दुम्बा। तो सबसे पहले अब ये हदीस तो आपके सामने आ गई थी, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन इल्ला अन यअस्सुर अलैकुम फतज़बहू जज़अतन मिन अज़्ज़ान। सही मुस्लिम की यह हदीस, इससे पता ये चलता है कि तुम मुसिन्ना जानवर ही की कुर्बानी करो, गैर मुसिन्ना की कुर्बानी करना गोया की सही नहीं है। हाँ, एक शक्ल बताई गैर मुसिन्ना की, वो भी सिर्फ दुम्बे में, भेड़ में, जो कि हम जिसे जो है शीप कह लेते हैं, तो उसमें एक शक्ल बताई कि वो अगर 1 साल का हो और दूसरा दांता जानवर मैसर नहीं, 1 साल का दुम्बा है, तो उसकी भी कुर्बानी कर ले सकते हैं। ये बात भी इस हदीस के अंदर है। अब आज के दर्स में मुसिन्ना का, चूंकि हदीस में लफ्ज मुसिन्ना का है, 2 दांत का लफ्ज इस तरह का कोई लफ्ज नहीं है जिसमें 2 दांत जो है बिल्कुल सराहत के साथ माना होता हो, बल्कि ये मुसिन्ना का लफ्ज है। मुसिन्ना अरबी ज़बान में ये असन्ना, असन्ना फेल होता है, फेल मादी असन्ना, फेल मुदारे उसका युसिन्नु होता है, तो उसी से ये मुसिन्नतुन है लफ्ज। तो मुसिन्नतुन के अंदर मुसिन्ना जो कहा गया है, ये क्या माना है इसका, इस पर तो सबका इत्तेफाक है कि मुसिन्न इस पर सबका इत्तेफाक है कि मुसिन्ना का ये लफ्ज असन्ना से ही लिया गया है। अब असन्ना जो है अरबी ज़बान में ये किस माना में है? असन्ना के ताल्लुक से कब जो है कहा जाता है जानवर को मुसिन्ना या मुसिन, और असन्ना कब कहते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी सी जो है अहले इल्म की जो शरह है वो पेश करना चाहूँगा। तो मुसिन्ना ये लफ्ज अरबी ज़बान में असन्ना का इसमें फ़ाइल है, मुसिन्ना असन्ना का इसमें फ़ाइल है। और असन्नर रजुल अरबी में बोलते हैं असन्नर रजुल,
जब आदमी की उम्र ज्यादा हो जाती है तब कहा जाता है असन्न रजुल, यानी एक तरह से बूढ़ा होने के माना में ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अरबी में। और मुसिन होता है, उसका माना होता है, जब इसे इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं असन्न रजुल, तो मुसिन जब इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होता है कि वो उम्र वाला है। और ये सिन्नुन से होता है जिसके अंदर जो है उम्र का माना भी होता है। असन्न रजुल, असन्न रजुल कब कहते हैं? जबकि वो शख्स बूढ़ा हो गया हो, आदमी के बूढ़े होने के बाद ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से असन्न में ये सिन्ने उमरी का जो है फायदा देता है, यानी गोया कि इसके अंदर उम्र का माना होता है कि उम्र ज्यादा हो गई है, बूढ़ा हो गया है आदमी। जबकि जब जानवर के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं असन्नल हैवान, जानवर के लिए असन्नल हैवान, तब उसका माना होता है कि ये जानवर दो दांता है, दो दांता है। असन्ना अल हैवान, जब इसे हैवान के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त उसके अंदर दो दांता होने का माना होता है, या कहते हैं इसको कि दांता होने का माना होता है। दो ही होना कोई जरूरी नहीं है, दांता होने का माना होता है। दांता होने का मतलब क्या है? क्योंकि मैं इसलिए ये बातें जिक्र कर रहा हूँ कि ये सब चीजें मेरे साथ पेश आई है। जानवर खरीदने के लिए जब जाते हैं बकरीद के मौके पर, तो बेचने वाले पूछते हैं भाई दांता है? तो क्या कहते हैं, हाँ 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 दांत तो है, देख लो जो है। तो ये दांत होने का मतलब नहीं होता है दांता। जो दांता किसे कहते हैं उर्दू में? दांता उस जानवर को कहा जाता है जो दूध का दांत उसका रहता ही है पहले से भी। किसी भी जानवर का मुंह खोलेंगे दांत तो रहेगा ही उसके अंदर। लेकिन जब हम कहते हैं दांता है उर्दू में, तो उससे मुराद है कि उसके दूध के दांत गिर गए। पूरे दांत ही गिरना नहीं है, एक दांत भी गिर जाए। आम तरीके से शुरू के पहले सामने के दांत जो है गिरते हैं जानवर के। तो इसीलिए जब शुरू दांत जो है सामने के दो दांत गिर जाते हैं तो फिर से दूसरा दांत आता है। जैसे हमारा भी मसला होता है, इंसानों का भी, कि हमारे जो दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, और फिर वहां पर उसकी जगह पे मजबूत दांत आते हैं। तो इसी तरह से जानवरों का भी मामला होता है। तो दूध का दांत गिर जाए और उसके बाद दांत निकले, जैसे ही दांत गिर गया समझो अब वो दांता हो गया। यहां से उसके ऊपर दांता होने का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है ये। और ये अलग अलग उम्र में अलग अलग जो है जानवर दांतते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है एक ही उम्र में सारे जानवर दांत जाते हैं, उनका दूध का दांत गिरता है, नया दांत आ जाता है। ऐसा भी नहीं है कि सारे जानवरों का एक ही मामला, बल्कि इलाकों का भी फर्क है। किताबों में जो इबारतें मौजूद है दांते के ताल्लुक से, जानवर के दांते होने की उम्र के ताल्लुक से, उससे भी पता चलता है कि शायद बाज़ जगहों पे बाज़ जो है जानवर जरा देर से दांतते हैं और बाज़ जगहों पे जल्दी दांत जाते हैं। ऐसा भी कुछ मामला है। लेकिन आम तरीके से होता ये है कि जिसे हम गोट कहते हैं, बकरी जो है, बकरी बकरा जो है, हम गोट जिसे कहते हैं, चाहे ही गोट हो चाहे शी गोट हो, ये 1 साल के बाद दांतता है। ये हमारे इस मुल्क की बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये है कि ये जो है 1 साल के बाद दांतता है। आम तरीके से 1 साल के बाद ये दांत जाता है। 1 साल गुजर जाता है तो 1-2 महीना और गुजरे, 13-14 महीने का होते होते, 15 महीने का होते होते वो दांत गिरता है। और जो है वो दांत, असली दांत जो होता है वो दूध का दांत गिर करके वो निकलता है। तो पहले सामने के दो दांत, उसके बाद फिर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके बकिया दांत भी 2 साल 2.5 साल का होते होते, कभी जो है 3 साल का पहुंचते पहुंचते पूरे दांत गिर करके उसके दांत पूरे हो जाते हैं।
और जब इस जो है उम्र को पहुंच जाए जानवर, तो समझो कि अब वो बूढ़ा हो रहा है, अब उसके गोश्त के अंदर वो मजा भी नहीं लगता है। कब उसके गोश्त का मजा असल जो है कब होता है, अच्छा गोश्त उसका माना जाता है जब वो 2 दांत का होता है, तभी अपनी वो जवानी की उम्र को होता है, और उसी वक्त उसका गोश्त अच्छा होता है, लजीज होता है। जब पूरे 8 दांत गिर जाए जानवर के, और अब पूरे 8 दांत जानवर के निकल चुके हैं, पूरे जानवर निकल चुके हैं, वो मजबूत जो है पूरे दांत जो है, जो मजबूत दांत होते हैं वो निकल चुके हैं, तो समझ लो कि अब ये जानवर बूढ़ा हो चुका है। ये आम तरीके से जानवरों के बारे में रहता है। उसको चर्बी फिर बहुत हो जाती है, जिस्म के अंदर मोटापा आएगा, चर्बी हो जाती है, और फिर जो है उसके गोश्त के अंदर वो जो है गोश्त जो नर्म गोश्त होता है वो चीज भी नहीं रहती है, गोश्त जो है जरा सख्त भी हो जाता है और जरा मुश्किल से गलता है, और जो है चर्बी भी बहुत ज्यादा उसमें हो जाती है। मैं ये थोड़ी सी तफसील बता रहा हूँ आपको मुसिन्ना के ताल्लुक से, जबकि बाज़ किताबों में ये लिखा हुआ है मुसिन्ना के ताल्लुक से कि जो है यानी दांतने की उम्र के ताल्लुक से बकरे के बारे में, कि 2 साल का होता है तो दांतता है। इमाम इब्ने असीर ये एक बहुत वही मशहूर जो है इमाम गुजरे हुए हैं, अरबी जबान के माहिर इमाम, जिन्होंने हदीस के अल्फाज जो होते हैं, हदीस में कोई मुश्किल लफ्ज अगर आता है तो उसकी शरह की गई है, तो वो जो है शरह करने वालों में से एक ये भी है इमाम इब्ने असीर रहमतुल्लाह अलैह, उसे गरीबुल हदीस कहा जाता है। गरीबुल हदीस का मतलब कि हदीस में कोई ऐसा लफ्ज जो कम इस्तेमाल में आता है, और इसी वजह से ज्यादा लोगों को उसका माना नहीं पता होगा, तो ऐसे अल्फाज की शरह की गई है अलग से। तो इमाम इब्ने असीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी शरह की है इसकी जो है अल्फाज की, गरीब अल्फाज की शरह की है, और उनकी किताब बहुत मशहूर है इस सिलसिले में, अन्निहाया फी गरीबिल हदीस। तो इमाम इब्ने असीर रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा है, निहाया में लिखा है कि क़ाल अल अज़हरी, अज़हरी एक मशहूर लुग़वी है, अरबिक लैंग्वेज के एक माहिर जो है इमाम है, इमाम अज़हरी। अल बक़रतु वश्शातु यक़उ अलैहिमा इस्मुल मुसिन्नति इज़ा असनया युस्नियान फी सनति सालिसति, कि अज़हरी ने कहा है कि गाय और बकरी, शायद ये गोट हमने आपसे कहा, तो गाय और गोट, ये ही गोट शी गोट, तो गाय और बकरी कहा कि इसमें इसके ऊपर मुसिन्ना का लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब इसके 2 दांत निकल आए हो, जब ये 2 दांता हो, और ये 2 दांता होता है जानवर ये जब उसकी उम्र तीसरे साल में, जब वो तीसरे साल में दाखिल हो गया हो। तो अब इन्होंने क्या लिखा है, तीसरे साल में 2 साल पूरे हो गए, तो तीसरे साल में जब वो दाखिल हो जाता है तब वो दांतता है, कह रहे हैं। उसमें बकरी का भी जिक्र किया, गाय के बारे में तो ये बात है, गाय के बारे में तो हमारे इस जो है मुल्क में जहां तक हमने देखा है वो यही है कि छोटा जानवर 1 साल के बाद दूसरे साल में ही दांत जाता है, जबकि बड़ा जानवर गाय बैल वगैरह ये 2 साल के बाद तीसरे साल में दांतते हैं। और ऊंट की जहां तक बात है तो 4-5 साल के बाद, असल जो है ये है कि छठे साल में ऊंट दांतता है। तो अलग अलग जानवरों का अलग अलग एतबार है इसमें, दांत जो है जो उनके दांत होते हैं दूध के दांत को गिरा करके दूसरा दांत जो निकलता है मजबूत दांत, तो अलग अलग जानवरों में अलग अलग हिसाब है। हमने अभी आपसे कहा कि जो हमारे यहाँ गोट जो है जिसे हम कहते हैं, तो गोट ये दूसरे साल में, और यही तकरीबन भेड़ का भी है, शिप का भी है, कि 1 साल गुजरने के बाद दूसरे साल में ये दांतते हैं। जबकि इमाम अज़हरी का कौल नकल किया है इब्ने असीर ने निहाया में, कि इन्होंने गोट के बारे में ये लिखा है कि गोट भी तीसरे साल दांत। तो
अब ये अलग अलग मुल्कों का अलग अलग मसला होगा। तो जहाँ ये रहते रहे हैं, जहाँ इन्होंने देखा है, वहां पर जो है गोट भी 2 साल के बाद तीसरे साल में वो भी जो है दांतते रहे हो, यानी उनका भी दांत, दूध का दांत टूट करके या दूध का दांत निकल करके जो मजबूत दांत आता है, वो दांत जो है तीसरे साल में ही आना शुरू होता रहा। तो ये इलाकों का फर्क भी हो, क्योंकि जानवर का भी फर्क होता है इलाके के लिहाज से। अब आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो गोट है ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बाज़ इलाकों में ये गोट बाज़ इलाकों में बहुत ऊंचे होते हैं, यहाँ तक कि जो है गाय बैल की थोड़ा कम ही सही, उतने उतने ऊंचे भी होते हैं ये जो, और उनके वजन 100 किलो से भी ज्यादा होते हैं। ऐसा ऐसे जो है गोट भी होते हैं कि 100 केजी से भी ज्यादा वजन का एक गोट जो है। और मैंने 100 केजी से ज्यादा कहा है आपको, सिर्फ 100 केजी भी नहीं, 100 केजी से भी ज्यादा, 1.5 क्विंटल या उससे भी ज्यादा होता है। तो उन इलाकों के जो बकरे होते हैं, जहाँ तक उम्मीद यही है कि वो अब 1 साल के बजाय 2 साल में दांतते होंगे, जैसा जो है उनके बढ़ने का हिसाब है उसके लिहाज से ही दाता होने का मसला भी होता होगा। फिर कहते हैं उसके बाद जो है इमाम इब्ने कसीर ने जो अन्निहाया में जिक्र किया है उसके अंदर ये बात है उसके बाद कि वलैसा मअना अस्नानिहिमा, वलैसा मअना अस्नानिहिमा किबरुहा कर्रजुली वलाकिन्न मअनाहु तुलू सिन्निहा फी सनति सालिसा। उन्होंने कहा कि ये जो मुसिन्ना का लफ्ज आया है, इसका माना ये उनकी उम्र का नहीं है, इसका मतलब ये उनका बूढ़ा होना नहीं है, बल्कि जैसे आदमी के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, बूढ़े होने के लिए असन्ना का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आदमी के लिए, तो जानवर में अगर इसको इस्तेमाल किया गया है तो ये बूढ़े होने का माना नहीं देता है, बल्कि जानवर के लिए इस्तेमाल किया गया हो तो इसका माना होता है कि उसका दांत निकला है, जो तीसरे साल में निकलता है, तीसरे साल में उसके दांत के निकलने का माना है असन्ना के अंदर। तो ये दांत निकलना जो कहा गया, हमने कहा ये दूध का दांत निकलने के बाद जो है जो दूसरा दांत निकलता है उस दांत के निकलने की बात कही, जो आम तरीके से गोट में हमारे इस मुल्क में दूसरे साल में, 1 साल गुजरने के बाद दूसरे साल में ये शुरू हो जाता है दूध का दांत गिरना और मजबूत दांत निकलना, ये बकरे में होता है। और जो है गाय बैल में हमने कहा कि 2 साल के बाद जब वो तीसरे साल में दाखिल होते हैं तो वहां से उसकी शुरुआत होती है। और ऊंट में हमने कहा आपसे कि 5 या 6 साल गुजर चुका होता है, 5 साल गुजर करके 6ठे साल में जब जाता है ऊंट, तब उसके दूध के दांत गिरने शुरू होते हैं और मजबूत दांत निकलने शुरू होते हैं। ये तो बात थी जो इमाम इब्ने असीर ने अन्निहाया जो उनकी मशहूर किताब है उसमें जिक्र किया। लिसानुल अरब भी अरबी ज़बान की लुगत की, अरबी ज़बान की लुगत की बहुत जो है मशहूर किताब है, यानी बहुत मशहूर डिक्शनरी कह लीजिए अरबी की ये। लिसानुल अरब कहा गया है उसको, इब्ने मंजूर ये किताब है लिसानुल अरब, उसमें वो लिखते हैं लिसानुल अरब में कि वल बकरतु वश्शातु यक़अ अलैहिमा इस्मुल मुसिन्न इज़ा असनया, कि गाय और गोट पे मुसिन का लफ्ज उस वक्त बोला जाता है, मुसिन्ना का लफ्ज ही हदीस में आया है, इसीलिए उस लफ्ज की हम जो है एक्सप्लेनेशन जो है जो शरह लोगों ने लिखी है, अहले इल्म ने लिखी है, हम वो बात आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि यह मसला असल इसी हदीस से जुड़ा हुआ है कि मुसिन्ना का माना क्या। तो मुसिन्ना का माना बयान करते हुए लिसानुल अरब में लिखा है कि वल बकरतु वश्शातु यक़अ अलैहिमा इस्मुल मुसिन्नि इज़ा असनया, कि गाय और बकरी इन पर मुसिन्ना का लफ्ज उस वक्त बोला जाता है जब ये 2 दांत निकाल दिए हो, 2 दांते हो गए हो। तो पहले वो सामने के 2 दांत जो है उनके गिरते हैं और वहां दांत निकलता है, तो उस वक्त कहा जाता है उनको मुसिन्ना। फ़इज़ा सक़तत सनियतुहुमा बअद तुलूइहा,
اور جب ان کے سامنے کے دو دانت گر جاتے ہیں اصلی دانت نکلنے کے وقت میں، فقد اسنت، تو اس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ اسنت الشاۃ، اسنت البقرۃ، ولیس فی معنی اسنانها کبرها کالرجل، اور اس کے معنی میں جانور کے لیے یہ لفظ بڑھاپے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، جیسے آدمی کے بوڑھے ہونے کے لیے عربی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو جانور کے بوڑھے ہونے کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ ولیکن معنی ہو طلوع ثنیتہما، لیکن اس کا معنی عربی میں ہوتا ہے اسن الحیوان، اس کا معنی ہوتا ہے ان کے سامنے کے دو دانت نکلنے کا، یعنی سامنے کے دو دانت، دودھ کے دانت نکل کر کے مضبوط دانت جب نکلتا ہے تو اس وقت اسنہ کا یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اسنہ کا معنی ہم اردو میں کیا کہتے ہیں کہ اسنہ کا مطلب ہوتا ہے دو دانتا ہونا، دو دانتا ہونا، یعنی دانتا ہونا چاہیے، دو دانت کوئی ضروری نہیں ہے، 4 ہو، 6 ہو، 8 ہو، کچھ بھی ہو، دانتا ہونا چاہیے۔ اس سے جو ہے اس کی عمر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی عمر کا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک لغت کی کتاب ہے المصباح المنیر جو ہے، اور بھی کتابیں ہیں جو عربی زبان کی، ان سب میں یہ لفظ، اس کی جو شرح کی گئی ہے اس میں یہی بات ذکر کی گئی ہے میرے بھائی۔ ایک ہندوستان کے بہت مشہور، چونکہ احناف کے یہاں بھی یہ کافی مشہور ہے یہ امام، اسی لیے میں ان کا نام ذکر کر رہا ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے، مسنہ کا جو لفظ حدیث میں آیا ہے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وجہ تسمیہ مسنہ آنست کی وی می انداز دو دندان پیش را کی آرا سنایا گوین دری عمر۔ یہ فارسی میں ہے، انہوں نے فارسی میں اس کی شرح لکھی ہے، تو کہا کہ اس کو مسنہ کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس عمر میں جانور اپنے آگے کے دو دانت گرا کر کے اس کے آگے کے دو دانت نکل آتے ہیں تو اسے مسنہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آگے کے دانت کو عربی میں ثنایا کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہے ان کا بیان ہے۔ مرآت المفاتیح جو ایک حدیث کی بہت مشہور شرح ہے مشکات کی، اور شیخ جو ہے عبد اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرح جو ہے لکھی ہے، اس میں انہوں نے شیخ سلام اللہ دہلوی کے بارے میں ان کا جو ہے قول نقل کیا ہے کہ شیخ سلام اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معطا کی شرح میں ایک بات لکھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ ان عبد اللہ ابن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تصل، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قربانی یا جو وہ اس موقع پر جو حج کے لیے قربانی دیتے ہیں، یا جو ہے عام قربانی بقرعید کے موقع پر جو قربانی دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے یہ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کہ وہ بچتے تھے ایسے جانور کی قربانی سے جو دانتا نہ ہو، جو دانتا ہو اسی کی قربانی وہ کیا کرتے تھے، اور ایسے ہی جانور کو وہ ڈھونڈا کرتے تھے قربانی کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں حدیث کی جو ہے شرح میں لکھی گئی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قال العلماء المسنۃ ہی الثنیۃ من کل شیء من البقر والابل والغنم، کہ مسنہ یہ دو دانتا جانور ہے ہر جو ہے قسم میں سے، چاہے اونٹ ہو، چاہے گائے ہو، چاہے گوٹ ہو، ہر قسم کے جانور میں سے دو دانتا جانور، اسی کو عربی زبان میں مسنہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں میرے بھائیوں جو ہے مسنہ کی شرح میں کتابوں میں مذکور ہے۔ اور بھی جو ہے
बातें जो है इस सिलसिले में जिक्र की गई है, और भी बातें जो है कही गई है, और मैं इस सिलसिले में मजीद और अक़वाल आपके सामने पेश नहीं करता हूँ। इसी पर जो है इक्तिफा करता हूँ। मुसिन्ना की शरह में जो ये अल्फाज जिक्र किए गए हैं, जो उसकी शरह में बातें कही गई हैं, वो मैंने आपके सामने पेश कर। और इन सब का खुलासा ये है कि मुसिन्ना कहेंगे उस जानवर को जो दो दांता हो। दो दांता होने से मुराद क्या है कि उसके सामने के दो दांत जो दूध के दांत थे वो गिर चुके हैं और उसकी जगह पर मजबूत दांत निकल चुके हैं या निकलना शुरू हो चुके हैं। वो गिरता है तो निकलता है। असल में उसकी तरतीब अल्लाह ताला ने ऐसे ही रखी है कि जब वो दांत निकलना होता है तो ये दूध का दांत खुद ही जो है हिल करके गिर जाता है, निकल जाता है, और वो दांत वहां से निकलना शुरू होता है। तो ये है असल मामला उसका। अगर वो दांत सिर्फ गिर चुका है तो समझ लीजिए कि अब वो दांत निकल रहा है। जब ये फितरी तौर पर होगा तभी ये चीज है, याद रखिएगा। कोई आदमी खुद से वो तोड़ दे, उसको निकाल दे, तो फिर वो फौरी तौर पर नहीं निकलेगा। फितरी तौर पर क्या है कि जब वो दांत निकलना होता है तो खुद ही ये, जब वो कोई चीज खाता होता है तो हिलने लगता है, पहले हिलने के बाद जो है उसके बाद वो दांत टूटता है। बल्कि इन सब से पहले भी एक बात बता दूं आपको जानवरों के ताल्लुक से, कि पहले वो जानवर वो दांत के बीच में गैप बनता है, पहले बाकायदा गैप बन जाता है दांत के बीच में। तो सब वो निकलने की, दांत निकलने की शुरुआत है असल में, क्योंकि दूध का दांत ये थोड़ा बारीक होता है और उसके मुकाबले में जो मजबूत दांत होता है थोड़ा उससे चौड़ा होता है। तो गैप बनना शुरू हो जाता है पहले ही से दांतों के बीच में। और जैसे ही ये दांत जो है वो मजबूत दांत नीचे से ऊपर आना शुरू हो जाएगा, दांत जो है क्या होता है नीचे से ऊपर आता है, जो एक तरह से हड्डी है वो बढ़ती है जो ऊपर की तरफ। तो जैसे ही वो दांत निकलना शुरू होता है ना, तो ये पहले का जो दांत है दूध का, ये खुद ब खुद फिर गिरेगा। इसको गिरना ही गिरना है। बाज बच्चे जब वो हिलना शुरू होता है तो हिला हिला करके उसको फिर निकाल देना चाहिए जल्दी से। लेकिन बाज बच्चे क्या करते हैं, वो डरते रहते हैं, निकालते नहीं है जल्दी। तो उनका आप देखेंगे क्या होता है, जो नीचे से दांत निकलना शुरू हो जाता है वो फिर सीधा नहीं निकल पाता है, थोड़ा दाएं बाएं टेढ़ा हो जाता है ऊपर दांत रहने की वजह से। ये तो इसीलिए बच्चों में भी इसका ख्याल रखें कि जब ये दांत हिलना शुरू हो जाए तो खुद ही थोड़ा हिला हिला करके उसको निकाल देना चाहिए, ताकि नीचे से जो दांत निकलना शुरू हो गया है और उसी के लिए अब ये दांत हिल रहा था, तो जो निकलता है ना तभी ये दांत हिलना शुरू हो जाता है फितरी तौर पर। तो गिरने की वजह से, किसी और वजह से हुआ है तो उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फितरी तौर पर एक उम्र होने के बाद ये खुद ब खुद दांत हिलना शुरू हो जाता है। और जब दया दांत दूसरा आता है उसी को दांता होना कहा जाता है, और यही देख करके जानवर को खरीदना चाहिए। कुर्बानी का जानवर दांता हो यही देख के खरीदना चाहिए। मैं आपको बड़ी जो है उसके साथ पेश कर रहा हूँ। ये दुम्बे के बारे में अभी हमने आपसे कहा कि 1 साल के बारे में लोगों ने बात लिखी है दुम्बे के ताल्लुक से, लेकिन ये बात जो है कब होगी, जब आदमी खुद पाला हो। आज का हाल ये है, और शरीयत के मसाइल भी ऐसे ही है मेरे भाई, ये क़यामत तक के लिए शरीयत है। और ये भी उसकी एक दलील है क्योंकि अब जानवर पालने का तो आम तरीके से रिवाज रह नहीं गया। लोग घरों में जानवर कहाँ पालते हैं। उस जमाने में सहाबा पाला करते थे जानवर, साल साल भर पालते थे वो लोग। जानवर बकरीद के बाद ही खरीद लिया, पूरा साल भर अपने पास रखेंगे, फिर कुर्बानी करेंगे, फिर दूसरा जानवर खरीद लेते हैं। बस जगहों पे अभी भी ये रिवाज है इस तरह का। लेकिन आम तरीके से अब जानवर पालने का रिवाज नहीं रह गया है, बल्कि ये भी अलग से एक तिजारत बन गई है कि कुछ लोग हैं जो इसे पालते हैं और कुर्बानी के वक्त में बेचते हैं। वो पालते हैं और पालते हैं बेचने के, बाकायदा ये भी एक तिजारत बन गई है। तो जब ये मामला है तो आप जानते हैं कि तिजारत में झूठ कितना होता है। सामने की चीज को लोग झूठ बोलते हैं, तो कैसे आप इन पर एतबार करेंगे बेचने वालों पर, जो आके कहते हैं भाई 1 साल का हो चुका है, 1 साल का हो चुका है। आप उनकी बात पर एतबार कैसे करेंगे?
कोई भी शख्स आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो, जब वो तिजारत पर आता है तो न जाने कितने झूठ बोलता है। आज के दौर में तो तिजारत में झूठ बोलना बहुत आम हो गया। खास तरीके से जब कुर्बानी के बारे में आप जानते हैं, हमारे मुल्क का हाल ये है कि वो जानवर जो आम दिनों में सस्ते बिकते हैं, जब उनको ज़बह करके गोश्त बेचने के लिए खरीदते हैं और कुर्बानी के मौके पर उनकी कीमत बढ़ जाती है और कुर्बानी के जानवर की कीमत ज़्यादा लगा करके बेचते हैं। तो अब ये आदमी जो बेचने वाला है, ये क्या सोचता है, अगर ये अभी नहीं बिका तो 1 साल और इसको पालना पड़ेगा अगर अच्छा रेट चाहिए, वरना अगर बीच में इसको बेचना पड़ा इनके लिए, जो है गोश्त बेचने वाले लोग हैं, कसाब है, इनको बेचना पड़ा तो सस्ता लेके जाएंगे, वो तो इतना महंगा लेंगे नहीं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब साल भर तक रख के पालो अगर अच्छा रेट चाहिए। उससे बेहतर है कि इसी साल इसको निकाल दो, साल भर का कह के निकाल देते। कौन चेक करने जाएगा? दुनिया में कौन सा ऐसा आला है बताइए आप मुझे, जिस आले से आप ये पता कर सकते हैं कि वाकई ये जानवर 1 साल का है या नहीं। तो इस्लाम कभी भी अपने जो है तालीमात में ऐसा कोई मेयार नहीं रखता है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं रखता है जिसका जानना हर एक के लिए मुमकिन न हो। आप चांद के बारे में सुनते रहते हैं कि इस्लाम ने चांद को मेयार क्यों बनाया कि चांद हर कोई देख सकता है, जबकि आजकल चांद को देखना मुश्किल हो गया है शहरों में, बहुत ज्यादा लाइट होने की वजह से, लेकिन देहातों वगैरह में देख सकते हैं। तो देख करके महीने का एतबार किया जाएगा, चांद को देख कर, जो हर एक के लिए मुमकिन हो सके। लेकिन ये चीज की जो है हिसाब के ऊपर उसको रखा जाए और जो है हाँ इस दिन जो है चांद निकल जाना चाहिए, उस पर नहीं रखा गया, क्योंकि ये हर जगह, हर इलाके और हर जमाने में ये चीज मुमकिन है। अभी हो सकता है कि इसके बारे में तहकीक करके आपको बता दें, ये चीजें हो सकती है, लेकिन आज से पहले ये चीजें नहीं थी। और आज जो लोग ये कर रहे हैं, कल ये जानकार लोग रहेंगे नहीं रहेंगे ये भी पता नहीं। तो इस्लाम के जो अहकाम होते हैं ना, वो ऐसे जो है चीजों पर मबनी होते हैं जो वाकई माने में हर एक के लिए पता लगाना वो मुमकिन है। ये दांत ऐसी जाहिरी चीज है कि मुंह खोल करके फौरन जो है आप जानवर का दांत चेक कर सकते हो खरीदने से पहले। उम्र कैसे चेक करोगे? वो बोलने वाला तो बोलेगा ही कि 1 साल का, उसको बेचना है वो तो बोलेगा ही 1 साल, उसकी बात का तो एतबार नहीं कर सकते हैं। या तो फिर खुद पालो, पालने के बाद जो है हाँ खुद पाला है तो ठीक है, लेकिन अब हर आदमी पालेगा क्या उसको? ऐसी बात है कि आप ये भी नहीं कहो। तो शरीयत ने एक मेयार दिया है, उसी का एतबार होगा। इसी साल में जब जानवर खरीदने गया कुर्बानी को, तो मेरे साथ पेश आया एक जानवर, देखा मैंने तो उसको मैंने जो है अंदाजा लगा, ठीक ठाक लगा देखने में थोड़ा, तो अंदाजा लगा कि दांता तो होगा ही, मैंने यही समझा कि दांता तो होगा ही। पूछा मैंने उसको कि दांता है, तो कहा कि हाँ है। खैर वो पूरे तरीके से मैंने तय भी कर लिया, उसको लेकर के लेने का तय हो गया, उसको लेने का बिल्कुल जो है ये मामला फाइनल हो चुका। पता नहीं क्या मेरे दिल में फिर ख्याल आया कि जरा चेक करूँ दांत, जैसे मैं अक्सर चेक करके ही लेता हूँ, लेकिन उसको तो देखने में ऐसा लगा वो जानवर कि मैंने सोचा कि चेक करने की ऐसी जरूरत नहीं है। और इतने वो इसके साथ बोल रहा था कि हाँ, यानी ऐसे बोलेंगे कि जो है कि आप क्या समझते हैं, हमको भी पता है कुर्बानी के बारे में, इसलिए कुर्बानी का जानवर आप दांत का ही लेके आते हैं, इस तरह की बातें कर। तो मैंने खोल के जब दांत देखा तो नहीं, बिल्कुल दांत का नहीं, बल्कि अभी 1 आध 2 महीने में दांतने वाला भी नहीं था। वो दांत देख करके वो भी अंदाजा हो जाता है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि वो दांत जो है टूटने से पहले, निकलने से पहले बीच में वो काफी गैप भी बनता है उसमें दांत के काटने से, तो अंदाजा होने लगता है कि अभी जल्दी जो है निकलने वाला है, ये जो है निकल करके दूध का जो है वो असली दांत आने वाला है। मैंने कहा उसको, यार तुम तो ऐसे कह रहे थे, कहा, "वो आपके सामने आप देख लो, हम क्या छुपा के कहीं रखे हैं जानवर, आप ऐसे कहना शुरू किया। जब वो सामने की चीज जब ये बोल सकता है कि दांता है, हालांकि वो दांता नहीं था, उसको पता भी था ये, तो उम्र के बारे में कैसे जो है झूठ नहीं बोलेंगे? ये तो कैसे भी बेचना चाहते हैं उसको।
आप उनकी बात पर कभी भी एतबार नहीं कर सकते। इसलिए दांता जानवर देख करके खरीदो, इस पर किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है, ये कहना चाहो। जानवर दांता है, किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि वो कुर्बानी सही है। दांता नहीं है तब इख्तिलाफ है। तो क्या सिर्फ उम्र 1 साल हो गई हो तो हम जो है इसे खरीद सकते हैं, या जो है बड़े जानवर में 2 साल की उम्र हो चुकी है तो खरीद सकते हैं, या ऊँट में 5 साल की उम्र हो चुकी है तो खरीद सकते हैं, दांता ना भी हो तो खरीद सकते हैं, उसका एतबार नहीं। क्यों एतबार नहीं है कि या तो फिर खुद पालना पड़ेगा। बेचने वाले की बात का एतबार करके हम नहीं खरीद सकते उसको, और खरीदना सही भी नहीं होगा, कुर्बानी करना सही भी नहीं होगा जब कुर्बानी के जानवर को इतना सब कुछ दे करके हम खरीदते हैं। बल्कि जैसा कि हमने कहा कि ज्यादा पैसा दे करके खरीदते हैं कुर्बानी का जानवर। आम दिनों में जानवर बेचे जाते हैं, उससे ज्यादा महंगे बिकते हैं कुर्बानी के मौके पर। तो जब इतनी सारी चीजें हैं तो क्यों नहीं हम उनका उसका दांत देख करके खरीदें, दांता हो तभी खरीदें। ये जो है आदत बना लें, क्योंकि इस पर सबका इत्तेफाक है। दांता है तो कुर्बानी जायज है, लेकिन दांता नहीं है तो उसमें फिर इख्तिलाफ है। बाज लोग उम्र के लिहाज से 1 साल का हो गया है बकरा तो उसकी कुर्बानी को जायज समझते जी। तो उम्र का एतबार करते हैं बाज को कहा, लेकिन वो कौल सही नहीं है। उसकी सबसे अहम वजह जो मैंने अभी बताया आपको, तो हदीस पे लफ्ज भी है ला तज़बहू इल्ला मुस्लिम, और दूसरी अहम बात यह है कि उसका 1 साल का होना, उसकी उम्र का कैसे हमको पता लगेगा जब हम उसको पाले नहीं। अब दूसरी शक्ल वही रह गई कि जिस जो बेच रहा है, 99% बेचने वाले खुद पाले हुए नहीं रहते, वो भी खरीद करके लाते पालने वालों से। उनकी तो सिर्फ तिजारत होती है, खरीद करके लाते हैं, बेचना चाहते हैं जैसे भी बिक जाए। वो कब सच बोलने वाले हैं इसमें, उनको खुद भी पता नहीं होता। अगर पता भी है तो छुपाएंगे, सही नहीं बताएंगे। इसलिए कभी भी धोखे में नहीं आना चाहिए। दांत देख करके जानवर को खरीदो ताकि पूरे तरीके से इत्मीनान रहे कि ये जानवर दाता है और इसकी कुर्बानी सही है। जब थोड़ा सा ऐब होता है जानवर में, उसकी कुर्बानी को मना किया गया कि अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहे हो, अच्छे से अच्छे जानवर की कुर्बानी दो। तो फिर ये दाता होने के मामले में क्यों आदमी सोचे। और ये भी याद रखिएगा, पहले मेरी ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि जानवर अच्छा वही होता है जो दो दाता होता है, उसके गोश्त के लिहाज से भी और उसकी उम्र के लिहाज से भी। बिल्कुल जवानी की उम्र का, ये कह लीजिए कि बिल्कुल नौजवानी की उम्र का वो जानवर होता है, गोश्त भी उसका लजीज होता है, और इसको कहते हैं कि बहुत उम्दा होता है। और उसी उम्र के जानवर का गोश्त खाना ये अच्छा होता है। और शरीयत ने भी ये चीज जो है जिक्र की है मेरे भाई, शरीयत में हदीस में भी इस तरह का जो है बयान आया होता है। तो क्यों ना हम उसका ख्याल करें। बहुत छोटा जानवर रहता है, दांते होने से पहले, तो समझ लीजिए कि बच्चा है, तो गोश्त के अंदर फिर वो चीज जो है वो तभी नहीं आती है। और जब ज्यादा उम्र का होता है तब भी कुर्बानी तो हो जाती है ज्यादा उम्र वाले की, मगर ये कि इतना बूढ़ा हो कि बहुत ही कमजोर हो चुका है तो उसको छोड़ करके बकिया जो है जानवर की कुर्बानी तो हो सकती है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होता है। जब हम अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश कर रहे हैं, अल्लाह के लिए पेश कर रहे हैं, तो अच्छे जानवर का इंतखाब होना चाहिए, और अच्छे जानवर में उसका दो दांता होना भी जो है शामिल है। ये चंद बातें थी जानवर के दांता होने के ताल्लुक से, और उसकी तफसील मैंने आपके सामने पेश कर दी है। आज का ये दर्स यहीं पर खत्म होते करते हैं, वक्त भी हो चुका है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।